Hi students, welcome back in English grammar class. This is your teacher Miss Hifsa. I'm here today with a new topic, but let's first discuss our yesterday's topic, that is adjective. You remember we have done adjectives. Adjectives are words which describes a noun, जो हमें noun के बारे में बताता है. This was your homework sheet. Circle the adjectives. इसमें से आप लोगों ने adjectives को encircle करना है. Look at the first word, red. रेड इज़ ए क्वालिटी जो हमें किसी वर्ब के नाउन के बारे में बताता है कि ये चीज़ कौन से कलर का है. सो एनसर्कल इट बिकॉज इट इज़ एन एडजेक्टिव. इन वी हैव द वर्ड बॉय, इट इज़ द नेम ऑफ समथिंग, इट इज़ नॉट एन एडजेक्टिव. कार भी हमारे पास नाउन है. स्मॉल, कोई चीज़ स्मॉल होती है या बड़ी होती है. सो इट इज़ टेलिंग अस अबाउट डिफरेंट थिंग्स कि वो छोटे हैं या बड़े हैं. दिस इज़ एन एडजेक्टिव. एनसर्कल इट. देन माउस इज़ द नेम ऑफ एन एनिमल. डॉग इज़ आल्सो द नेम ऑफ एन एनिमल. Mother is the name of a person. Friend is the name of a person. You are not supposed to encircle all them. And we have the word coat. It is the name of a dress जो आप लोग पहनते हो. So don't encircle it. Then we have soft and hard. Soft and hard are two words. ये एक दूसरे के opposite भी है. Soft जो चीज़ नरम होती है हम उसे soft कहते हैं. Hard सख्त, जब कोई चीज़ सख्त होती है. So these two are adjectives. encircle both of them क्योंकि ये हमें डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताते हैं. And we have the word pleasant. जिस तरह हम कहते हैं आज तो दिन बड़ा खुशगवार है. The word pleasant is telling us about days or weather. हम कहते हैं मौसम खुशगवार है. So encircle it. It is an adjective. And we have the word girls and books. Girls and books are the nouns. ये तो nouns है. As you know ये तो चीज़ों के names हैं या name of person girl. So don't encircle it. Then we have the word long. जब कोई चीज़ लंबा होता है we call it that it is long. So encircle it क्योंकि ये भी हमें किसी चीज़ के बारे में बताता है. Then bicycle. Bicycle is a noun. ये तो noun है. Don't encircle it. Then we have the word short. अब यहाँ पे देखिए short and long are two opposite words. एक दूसरे के opposite है. एक चीज़ बहुत छोटी होती है, एक लंबी होती है. So this word short is also telling us about something. जिस तरह आप लोग का पेंसिल शॉर्ट होता है या लॉन्ग होता है. So this word short would be telling us about pencil or any other word. So encircle it. ये भी adjective है. Then we have the word finish. Finish is an action word. किसी काम को ख़त्म करना. So don't encircle it. ये verb है. Okay. Play is also a verb. ये भी एक action है, खेलना. Then fast. We have the word fast. As you can see it in the picture, bicycle ये बाइक बहुत ज़्यादा तेज़ जा रही हैं. So this word fast is also telling us about different nouns. So encircle it as well. Then we have poor. जिस तरह poor लोग होते हैं, rich लोग होते हैं. So this word poor is also an adjective because it tells us about different people. So encircle it. Then we have the word do जो कि हमारे पास action word है. goes भी action words हैं. this person ये वाला शख्स. कौन सा शख्स? ये वाला शख्स. So this word is also an adjective क्योंकि ये हमें बता रहा है कि ये वाला शख्स या वो वाला शख्स या कौन सा वाला शख्स. So it is also an adjective. Then come toward the next page. Circle the adjectives. इसमें से आप लोगों ने adjectives को circle करना है. First है curly. Curly mean घुंघराले. जिस तरह कुछ बाल straight होते हैं, hair straight होते हैं, किसी के बाल curly होते हैं. आप लोग के बाल कैसे हैं? Whether it is curly or straight. So this word curly is an adjective. Encircle it. Then we have photo. Photo is the name of something. It is a noun. So don't encircle it. Then we have the word hollow. You know what is hollow? जब कोई चीज़ अंदर से empty होती है, खोखला जिसे हम कहते हैं. जिस तरह when you take out a pipe, आप लोग एक पाइप उठाते हो, उसे देखते हो, वो उसमें अंदर आप लोग को जगह, खाली जगह नज़र आ रही होती है ना. So that is called hollow. So encircle it क्योंकि ये एक adjective है. In the word reading is a verb. So don't encircle it. ये एक action word है. Then we have the word jolly. Jolly एक ऐसे शख्स के लिए हम कहते हैं जो बहुत ज़्यादा खुद भी हंसता रहता है और लोगों को भी हंसाता है. So it is a type of person. एक person के लिए हम यूज़ करते हैं. So encircle it क्योंकि ये हमें noun के बारे में बताता है. Bench is a noun. Then brown. Brown, I told you all colors are adjectives. कौन से कलर का एक चीज़ है तो वो ब्राउन कलर का हुआ. So it is also an adjective. Then we have the word walk जो कि हमारे पास क्या है? walk action word है. It is a verb.
फास्ट, जिस तरह आप लोगों ने पिछले वाले में भी किया, फास्ट बाइक था। सो इट इज़ एन एडजेक्टिव, एनसर्कल इट। एंग्री, जब कोई शख्स गुस्सा होता है। एज एट टाइम्स, आप लोग कहते हो डैड इज़ एंग्री टुडे, आज तो बाबा गुस्सा है। सो दिस एंग्री इज़ आल्सो अ क्वालिटी, ये भी हमें बता रहा है कि बाबा का मूड कैसे है। सो इट इज़ एन एडजेक्टिव, एनसर्कल इट। Then we have cross, when you cross the road, so ये एक एक्शन वर्ड हुआ। Then we have the word card, जो कि noun है, it is the name of something. Then we have fancy, you know there are two type of dresses। एक आप लोग का सिंपल ड्रेस होता है जो आप लोग घरों पे पहनते हो, अब एक फैंसी ड्रेस होता है जिस पे काम वगैरह हुआ होता है, और वो आप लोग अपने जब किसी फंक्शन वगैरह में जाते हो तो तब यूज़ करते हो। So this word fancy is also an adjective. Then we have the word flat, हमवार, जब कोई जगह बिल्कुल साफ एंड हमवार होती है। So this is also telling us about something. So encircle it. Then we have the word horse, ये horse है, okay? So it is the name of an animal, so don't encircle it. Okay, then come to the next sentence, come to the next question where we have sentences. इन sentences में आप लोगों ने ऊपर से adjectives put करने हैं। Debbie's hair is long and dash, Debbie's के बाल कैसे हैं? long है, लंबे हैं, and dash और curly है। put the word curly here. The tree stump is dash, tree का तन्ना क्या है? hollow, अंदर से खोखला है, अंदर से empty है, hollow. My mom wore a dash dress, मेरी मम्मा ने कैसे कपड़े पहने हैं? fancy dress. So write the word fancy here. Chocolate bars are, chocolate bars कौन से कलर के होते हैं? brown. So write the word brown here. The dash man smiled all the time, कौन सा शख्स हर वक्त हंसता रहता है? angry man? no, the jolly man. A pancake is dash, pancake, you know ये स्मॉल से केक्स होते हैं और ये फ्लैट होते हैं, हमवार होते हैं। So write the word flat here. Now come towards our today's topic, which is adverbs. What is it? Adverbs. Say it again, adverbs. As इसके names में भी mention है, इसमें एक word mention है, verb। आप लोग को नज़र आ रहा है verb लिखा हुआ इसमें ना। So it is a word which tells us about adverbs. इसकी definition हम क्या करेंगे? A word that describes a verb is called adverbs. A word that describes a verb is called adverbs. adverbs कौन से verbs होते हैं? जो कि हमें verb के बारे में बताता है। verb आप लोग जानते हो ना, ये एक एक्शन वर्ड है, इसमें हम कोई एक्शन कर रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं। तो अब वो काम हम किस तरह से करते हैं? वो काम हम अच्छी तरह से कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तेज़ कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं। सो दीज ऑल वर्ड्स वुड बी एडवर्ब। जिस तरह आप लोगों से टीचर पूछती है कि हैव यू डन योर वर्क, आप लोगों ने अपना काम कर लिया। यू हैव रिटन योर वर्क फ्रॉम द बोर्ड, तो आप लोग कहते हो येस मैम आई हैव डन। तो फिर मैम पूछती है कि यू हैव डन इट नीटली या रफली, आप लोगों ने नीटली किया ये काम या रफली किया है? रफ किया है या नीट किया है? Okay, now look at these pictures. Look at the first one. The child is reading something. So how is he reading? Read carefully. वो किस तरह की reading कर रहा है? Carefully. So this word carefully is telling us about the action word जो कि verb है, और हमारे पास कौन सा word है? Read. So it is an action word, read, and the word carefully is telling us about the verb. So it is an adverb here. Look at the next picture. Walk slowly. किस तरह की walking कर रहा है? Slowly, आहिस्ता से चल रही है वो। So this word slowly is telling us about the action of the girl. This is also an adverb. Sleeps quietly. वो खामोशी के साथ सोया हुआ है। Quietly, he is not making any noise. वो snoring नहीं कर रहा, वो चुपचाप सोया हुआ है। So here the word quietly is telling us about the action sleep, कि वो किस तरह सोया हुआ है। Sings beautifully. Sings beautifully. The word beautifully is telling us about कि बच्ची किस तरह का गाना गा रही है। Sings beautifully, बहुत अच्छा गा रही है। Here the word beautifully is telling us about the verb sing. So encircle this beautifully, क्योंकि ये हमारे पास क्या है?
एडवर्ब हैं। नाउ लुक एट अनदर एग्जांपल। एडवर्ब्स यहाँ पे कौन से हैं? वेरी क्विकली, पावरफुली, हार्ड। लुक एट द पिक्चर। बच्ची क्या कर रही हैं? शी इज़ अबाउट टू किक द बॉल। वो फुटबॉल को किक करने वाली है। तो अब वो किस तरह से किक करेगी? वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी से, पावरफुली, बहुत मजबूती से करेगी, हार्ड और सख्त हिट करेगी। क्यों? ताकि ये जो सामने बच्चा खड़ा है जो बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है तो वो उसे ना रोक सके। सो दीज वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग किक। ये हमें उसके एक्शन के बारे में बता रहा है कि ये किस तरह का एक्शन करेगी। सो क्विक एक्शन करेगी। सो दीज आर ऑल एडवर्ब्स हेयर। A word that describes a verb is an adverb। जैसे मैंने आप लोग को बताया इसकी definition क्या है। A word that describes a verb is an adverb। Some adverbs answer the question how। adverbs हमें कौन से question का आंसर कर रहे हैं? how, के काम कैसे हो रहा है। Look at examples and sentences। A dog barked loudly। A dog barked loudly। dog जो है वो किस तरह की barking कर रहा है? How is he barking? loudly, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ से। so this word loudly is adverb sorry। the tiger waits patiently। टाइगर किस तरह का वेट कर रहा है? patiently, सब्र से वेट कर रहा है। so here the patiently is telling us the verb wait के बारे में हमें बता रहा है। the girl sits quietly। बच्ची किस तरह की से बैठी है? लड़की किस तरह बैठी है? quietly, खामोशी से बैठी है। this quietly is telling us about कि वो किस तरह बैठी हैं। so these are all adverbs here। hope this would be clear to you। now we have your homework page जिसमें आप लोग को होमवर्क दिया है। and what you have to do, you have to circle the adverbs in it। आप लोगों ने क्या करना है? इसमें से adverbs को encircle करना है। and underline the adjectives, और adjectives को underline करना है। adjectives का पता है ना? adjectives हमें noun के बारे में बताता है और adverb हमें verb के बारे में बताता है। so you have to encircle, circle उसके इर्द गिर्द ड्रॉ करना है एडवर्ब्स के इर्द गिर्द एंड एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है। now look at the first word। birds हैं। birds जानते हो ना? परिंदे। दिन ग्रीन कलर का, इसको इस वजह से अंडरलाइन एज ए सैम्पल आप लोग के लिए अंडरलाइन किया है कि आप लोगों ने इस तरह से एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है। स्टिक, छड़ी। सिंग, गाना। इजीली, आसानी से। डॉग, कुत्ता, एज यू नो। नाइस, बहुत अच्छा। डिलिकेटली, नाजुक तौर पर। जब हम कोई चीज़ नाजुक तौर पर करते हैं ना, नाजुक हालत में करते हैं। then we have the word wet, गीला। लवली, बहुत प्यारा। अब ये देखो इसको एनसर्कल क्यों किया है? बिकॉज इट इज़ एन एडवर्ब। आप लोगों ने इसी तरह बाकी सारे एडवर्ब्स को भी एनसर्कल करना है। पुट, डालना। एंशियसली, फिक्रमंदी के साथ। स्क्विरल, गुलहरी। डिशेस, बर्तन। एक्टिवली, चुस्ती के साथ, जब हम कोई काम एक्टिवली करते हैं। क्लाइम, चढ़ना। फ्रेजाइल, नाजुक। जिस तरह शीशे का ग्लास क्या होता है? फ्रेजाइल होता है, वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। ग्रास, घास जो होते हैं गार्डन में। फरी, जब कोई चीज़ किसी बर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा फर होते हैं, उनके वो जो पर होते हैं, जैसे उर्दू में भी हम पर कहते हैं, ठीक है, तो वो हम कहते हैं दिस थिंग इज़ फरी, दिस बर्ड इज़ फरी। फर्मली, मजबूती से। नैरोली, तंगी से, जब कोई चीज़ तंग होती है। क्लियर। हेस्टली, जल्दी से। स्विंग जानते हो ना? झूला। मिस्ड, जब हमसे कोई चीज़ मिस हो जाती है, ज़ाया हो जाती है। ट्री, दरख्त। बेंच, एज यू नो बेंचेस जो होते हैं। लिटल, छोटा। गिव्स, देना किसी को, जब हम कोई चीज़ देते हैं। स्मूथ, हमवार। वॉर्म जानते हो? इट इज़ अ टाइप ऑफ स्मॉल लिटिल रेप्टाइल जो स्नैक की तरह होते हैं लेकिन छोटे होते हैं। होप दिस लेक्चर वुड बी क्लियर टू यू। एडवर्ब्स की समझ आ गई। रिपीट इट्स डेफिनेशन। A word which describe a verb is an adverb। A word which describes a verb is an adverb। A word which describe a verb is an adverb। जो हमें किसी चीज़ के एक्शन के बारे में बताए कि वो एक्शन किस तरह कर रहा है। As you are listening to me now, मैंने आप लोग को बताया था। You are watching this video। This word watching and listening are verbs here। आप लोग एक एक्शन कर रहे हो।
लेकिन आप लोग ये किस तरह कर रहे हो? यू आर लिसनिंग केयरफुली, केयरफुली लिसनिंग कर रहे हो। दिस वर्ड केयरफुली इज एन एडवर्ब। यू आर राइटिंग, आप लोग लेक्चर नोट कर रहे हो, राइट कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो। यू आर राइटिंग नीटली, अगर आप लोग नीटली लिख रहे हो, दिस वर्ड नीटली वुड बी एन एडवर्ब। क्लियर? See you in my next lecture soon. Have a nice day.